اچھا اور میرا خیال ہے کہ جو دنیا میں تقریباً 15 ایسے ممالک ہیں جو اسی ماڈل کو کسی نہ کسی شکل میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اور اس پہ کام کریں. کام کریں. پاکستان میں بھی 2007 میں اس کو باقاعدہ طور پہ ایز اے ماڈل اڈاپٹ کیا گیا اور آہن اس کو وقت آہن کو ٹھیک اور ہے ود لوکل نیم. اب دیکھیں تو ون ولیج ون پروڈکٹ, ایک ہنر ایک نگر. بالکل. تو آہن اس طرح وجود میں آیا اور پھر اس کو حکومت پاکستان نے جب شروع کیا تھا منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر میں ایز اے اسپیشل انیشیٹو کے طور پہ شروع کیا. پورے پاکستان میں ہمارے آفیسز ہیں اور ہم بنیادی طور پہ ایک غیر منافع بخش ادارے کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ناٹ فار پروفٹ. ٹھیک ہے, اور یہ سب سے اچھی بات ہے. جی یہ سب سے میں کل جب آپ لوگ کی پروفائل دیکھ رہی تھی تو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی, خوشی ہوئی یہ چیز پڑھ کے کہ ناٹ فار پروفٹ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی نیڈ بھی تھی کہ آپ دیکھیں کہ جس کام کو ہم نے لیا ہے دیٹ از ہینڈی کرافٹس, نان فارم سیکٹر. اور پورے پاکستان میں آپ رورل ایریاز میں دیکھیں یہی ایک چیز ہے جو کہ لوگوں کے پاس ایک ہنر ہے جس پہ بلٹ آن کر کے پوری ایک ریولیوشن آ سکتی ہے, ایک تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب اس پوٹینشیل کو دیکھا گیا, اسیس کیا گیا تو اور جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان بھی اسٹڈی کی گئی تو اس کے ذریعے سے اس ہنر کی فروغ سے جو ایکسپورٹ اور برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے دیٹ از امیزنگ. تو اس وجہ سے اس پروگرام پہ فوکس کیا گیا. اور صرف یونیکنیس اس پروگرام کی یہ ہے کہ ہم ایک مڈل مین کا جو کردار ہے پازیٹیو وے میں ادا کر رہے ہیں. اور آرٹیزن جن کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے, جن کو پروڈکٹ کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو وہ ٹیکنیکل سپورٹ آن بیہاف آف گورنمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسی طرح ہماری پوری ٹیم ہے پورے پاکستان میں. پورے پاکستان میں ہمارے آفیسز ہیں, ہیڈ آفس لاہور میں ہمارے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, اس کے علاوہ پروگرام پوری ایک آرگنائزیشن پراپر طریقے سے اس پہ وہ کام کر رہی ہے, بہت اچھے طریقے سے کام اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انیشیل اسٹیج پہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت ذرا بتائیں گے کیا مشکلات آپ کو آئی ہوں گی. اس وقت تو ہمارے ساتھ بہت بڑے ڈیزائنر ساتھ تھے جن میں آپ رضوان بیگ دیکھ لیں جو کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, امیر عدنان, دیپک تروانی, نورجہاں الگرامی, اور بھی بہت سے نام ہیں جو کہ مسز سعید, تانیز, یہ سارے لوگ ساتھ مل کے انہوں نے اس کانسیپٹ کو ایکچولی ٹیسٹ کیا اور اس کے پوٹینشیل کو دیکھا کہ واقعی اس میں کام ہو سکتا بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ٹیم بلڈ کی, جو ڈفرنٹ ڈیزائن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن کی, اور نئے نئے ینگ ڈیزائنرس آپ دیکھیں گے پوری ہمارے ساتھ ٹیم ہے جو کہ کام کرتے ہیں. اور اکراس پاکستان اور رورل ایریاز میں جا کے, ولیجز میں جا کے لوگوں کو ڈیزائن کا سینس دینا, ان کے ساتھ کام کرنا, ان کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کروانا. بالکل, یہ ایک بہت ان کی ایک ہیلپ کر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, لیکن کس طرح سے آپ لوگ ان تک پہنچتے ہیں, کیا آپ کی ٹیم کس طرح سے ان تک جاتی ہے, ان کو کس طرح سے آپ سمجھاتے ہیں؟ شروع میں تو بڑی پرابلمز آئی ہوں گی, ان کو بتانا, ان کو سمجھانا, کس طرح سے آپ نے سارے کام کرنے. تو دیکھیں ایک تو ٹرسٹ بلڈنگ کا رشتہ ڈیولپ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, اس کے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. لیکن آپ جب لوگوں کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ اور اس سے ریئلائز کرائیں کہ آپ ان کے لیے ہی کام کریں تو لوگ ریسپانڈ کرتے ہیں اور ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہی ہمارے جو پوری ٹیم ہے, جب ہم ولیجز میں جاتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, ان کو دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے ساتھ ولنگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. اور انیشیل جب ہم نے کام شروع کیا تھا 2007 میں, تو ہم نے ایک پورا سروے کیا تھا پاکستان میں اور ایسے کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے جو کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے جہاں پہ یہ کرافٹ کا کام ہو رہا ہے. اچھا. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ اب پنجاب کے فلاں گاؤں میں جنڈی کا بہت, سلام والی میں جنڈی کا بہت خوبصورت کام ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بلوچستان کے چھوٹے سے ایریا میں ٹرک آرٹ پہ, امبرائڈری پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. پوٹینشیل وہ ہمیں پتہ ہے. اب ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں پھر پروڈکٹ ڈیزائن کر کے اور پھر ان ایریاز میں جاتے ہیں, ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح, لائک آپ لوگ پورا پراپر جا کر کے چیک کرتے ہیں, پھر ان کو سمجھاتے ہیں ڈیزائن. اچھا, آپ کے ساتھ نئے ڈیزائنرز بھی ہیں, علی بھی ہیں. علی, آپ نے کب جوائن کیا آہن کو؟ مجھے تقریباً سال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. واٹس یور ایکسپیرینس, کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا آہن جوائن کرنے کے بعد, اور کس وجہ سے آپ نے آہن کو جوائن کیا یہ بھی بتانا. بیسکلی کرافٹ میں مجھے ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی ہم کرافٹ کو دیکھتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ پوٹینشیل ہے اس پہ ڈیزائن انٹرونشن کے لیے. تو اسی وجہ سے ان کو جوائن کیا, پتہ چلا تھا کہ یہ آرگنائزیشن ہے جو اس پر کام کر رہی ہے اور سیریس ورکنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بیس پہ پھر جوائن کیا تھا. پھر بہت اچھا ایکسپیرینس بھی رہا تھا تھرو آؤٹ دا ایئر. ہم نے جس طرح سے سیمپل ڈیولپمنٹ کی, ڈیزائنس بنائے تھیم کے بیس پہ, اور سیمپل ڈیولپمنٹ کی, پھر اس کو پروڈکشن پہ لے گئے.
ठीक है। और जिस तरह आर्टिजन्स के साथ मिलना जुलना और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो लाइक आप लोग फिर किस तरह से इस पे काम कर रहे होते हो, क्या आप लोगों का काम होता है? हमारा इनिशियल स्टेज तो यही होता है कि हम पहले तो एक कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं, कोई भी क्राफ्ट आते हैं, उसके ऊपर हम पहले डिज़ाइन के बेस पे हम थीम डेवलप करते हैं कि ठीक है। किस थीम पे हमें इस पे काम करना है। जैसे वही सर बता रहे हैं आपको ट्रक आउट पे काम हुआ है, बिल्कुल। तो पहले उसकी डिज़ाइन पूरी डेवलप हुई है ऑन अच्छा। पेपर, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में किस तरह से उस पर वर्किंग होती है, क्रिटिक करते हैं लोग एक दूसरे के काम पे, फिर हम जाते हैं आर्टिसंस के साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह डिज़ाइन डेवलप होगी, क्या चेंजेस होंगे, और उनको भी लिबर्टी दी जाती है कि वो भी अपना इनपुट करें। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी Because that is बात very है। important. हाँ, कि कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि Restrict जी नहीं आपने होता, यही हाँ। काम करना है, ताकि ठीक उनका है। भी इंटरेस्ट डेवलप हो। हाँ, तो यही मेजर जो है रीजन होता है। ठीक है। अच्छा सदफ, आप बताओ कि हमारे, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, है ना? कि जब आप लोग जाते हो और जाके उनको कलर्स देते, अच्छा तो फिर सब चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करते हो अपने पास? ठीक है। एक आपका फॉर इंस्टेंस ये क्वेश्चन अगर हाँ, आप देख इतना रहे हैं, खूबसूरत क्वेश्चन ज़रा दिखाएं प्लीज़ हमारे कैमरे में, कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, कलरफुल सा। हाँ, अच्छा ये ठीक है। ट्रक आर्ट बेसिकली थीम, हम जैसे एक थीम ले लेते हैं, वो हमने ट्रक आर्ट थीम दी। अब हम करते ही हैं कि उनके उन एरियाज की जो औरतें या जो भी आर्टिजन्स काम कर रहे हैं, उनके मोटिव्स भी हम माइंड में रखते हैं, उस क्राफ्ट अच्छा, की हाँ यूनिकनेस, वो सब कुछ माइंड में रखते हुए फिर हम उस पर कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ताकि है। फिर वहाँ लेके जाएं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो कि बिल्कुल अलग से कोई चीज़ ना हो जाए। फिर वहाँ जाके हम उनके, जिस तरह अगर एम्ब्रॉयडरीज के हवाले से हम बात करते हैं, तो उनके स्टिचेस कि उस एरिया में किस तरह के कितने स्टिचेस हो रहे हैं। अच्छा। फिर उनमें से हर इंडिविजुअली हर आर्टिजन को जो हम काम दे रहे होते हैं, उनके स्टिचेस पिक करते हैं और उस वक्त उन्हें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बताना हमारा काम होता है। उनके आगे एक ट्रेस्ड पीस पड़ा हुआ होता है, पूरा छपाई हुआ हुआ, और उस पर फिर वो काम कलर्स अकॉर्डिंग टू हमारे कलर्स, जिनके लिए हम कलर्ड प्रिंट आउट्स उनके लिए लेके जाते हैं, जो हम यहाँ से वर्किंग करके लेके जाते हैं अपने ऑफिस से, कलर्ड प्रिंट आउट के उनको पता हो कि किस जगह पे कौन सा कलर आ रहा है, तो उनके लिए भी इजी हो। तो दैट्स हाउ दे वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फिर वो पूरा एक प्रोडक्ट जो है हम अपने सामने सैंपल डेवलप कराते हैं। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल देखनी होती है कि एम्ब्रॉयडरीज उनकी नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरीज हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये अजरक है, तो फिर अजरक को आप लोग देखें कितना अच्छा ये स्टोल है और इस पे पूरा अजरक वर्क हुआ हुआ है। या ये पूरा है ना? अजरक है जो बहुत ही खूबसूरत सा ये कलर है। तो इस पे भी जाकर के आप उनको बताते हो, हाँ, समझाते इन पे भी जाके पहले क्योंकि वो आई थिंक कॉटन और उस पे कर रहे थे, अब उनको हम सिल्क्स में लेके आए हैं, रॉ सिल्क, शिफॉन पे अजरक आई है, और ये नेचुरल डाइज में आ गई है। अच्छा। पहले आप केमिकल डाइज में कलर फेड होते थे, वॉश करने में हम Problems अजरक के होती थी, सूट जी हाँ। मार्केट्स में जाके लेते थे, तो वो वॉश करने के बाद कलर बिल्कुल कहाँ से कहाँ चला गया। तो फिर ये हमने डिजाइनर्स के साथ उनके साथ जाके काम किया, और फिर उनको फिर ये प्रोडक्ट डेवलप हुआ Very है। nice, और फिर बहुत उससे अच्छा फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे ये स्टोल आप देख रही हैं, आई थिंक अगर आप पहने भी तो काफी, अगर हाँ, ऑडियंस ये को मैं ये पहन के सोच रही थी कि दिखाएं मैं तो पहन ज़्यादा के अच्छा दिखाती रहेगा। हूँ, ये बड़े स्मार्ट लगेगा एक अजरक के स्टाइल में। मैं इसको पहन लेती हूँ। ये देखिए जी, राइट है। Yeah. That बहुत is अच्छा लग really रहा है, nice. बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हैंडमेड है, और ये जिस कॉज के लिए काम हो रहा है, ये चीज़ बन रही है, तो ये बहुत अच्छा। तो फिर आप लोग किस तरह से फंडिंग किस तरह से होती है? जाहिर है इसके ऊपर एक, जब आप लोग कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं इसके ऊपर, इस काम पे, तो फिर किस तरह से आप लोग फंडिंग करते हैं, किस तरह से आप लोग काम करते हैं फिर इसके ऊपर? देखिए, इस पूरे प्रोग्राम की मेन फंडिंग तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। ठीक है। और इसमें जो अभी देखें प्रोडक्ट जो बन रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और जो ऐसे मेगा प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ इन आर्टिजन को लिंक करें। ठीक है। और उनकी जो प्रोडक्शन होती है, जो भी उनसे प्रॉफिट वगैरह होता है, वो फिर रिवॉल्व होता है आर्टिजन की सपोर्ट के लिए, इसके वो वापस नहीं जाता। हमारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी बना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कि वॉलंटियरली हमारे काम को देखते हैं। तो ये प्रॉफिट वापस उनको नहीं जाता या किसी और अकाउंट में सही सही चला जाता है वहाँ तक, फिर इस पे काम हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस क्योंकि देखें हमारे। शकील साहब, इतना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लोगों का ट्रस्ट इतना खत्म हो गया है कि फिर लोग 10 दफा सोचते हैं कि यानी कि इतना अच्छा कॉज है, हर कोई इसमें मदद करना चाहेगा, हर कोई इसमें बढ़ना चाहेगा, आगे आना चाहेगा, फंडिंग करना चाहेगा, लेकिन एक्चुअली हम सबका ट्रस्ट इतना ब्रेक हो गया, आई डोंट नो क्यों, लेकिन जो है हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो क्या हम ट्रस्ट करके इसमें फंडिंग कर सकते हैं लोग? एग्जैक्टली, ये चीज़ अगर करनी हो तो फिर उसके लिए वो आर्टिजन्स लाइव केसेस स्टडीज मौजूद हैं, जिनकी लाइफ में चेंजेस आई हैं, जो कि ये बात कर सकते हैं। वो आपकी सक्सेस स्टोरीज जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो इस बात की दे सकते हैं कि वो किस तरह उनसे बेनिफिट
आहन से ले रहे हैं और क्या उनको और आहन की अपनी वेबसाइट भी है www.ahan.org.pk, उस पर भी जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने तो खुद कल सक्सेस स्टोरीज देखी हैं आप लोगों की। अच्छा, तो फिर आप लोग लाइक इस तरह से फंडिंग करके इस पे आप लोग काम करते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताएंगे सदफ के ये जो इतना खूबसूरत सा कप रखा हुआ है, ये कहाँ का काम है? ये हमारे इंटीरियर किस जगह का काम है? ये हाला में हमारा, ये मुल्तान मुल्तान में में हमारा काम ठीक हो है। रहा है। वो मुल्तान वाले अगर देखें तो देखें कितना खूबसूरत ये काम है, और ये सारा हैंडमेड है, ये कम्प्लीटली पूरा हैंडमेड है। तो इसका भी सारा आप लोग करते हैं, इस पे सारी डिजाइनिंग करना? डेवलपमेंट होती है वो हम लोग जो हेड ऑफिस से भी होके जो उनका हाँ। भी हेड डिपार्टमेंट है, ठीक तो है। उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी वो करवाते फिर वहाँ से आप लोग बनवाते हैं। ओह वेरी नाइस। अच्छा, और ये जो हमारे पास ये जो टेबल मैट्स टेबल मैट्स पड़े जो हुए रखे हुए हैं, ये भी मुल्तान ये भी मुल्तान के? अच्छा, और ये सारी हैंड वीविंग की वहाँ पे जो मुल्तान बड़ा जबरदस्त सकाफती एक सकाफत है, नजर आती है मुल्तान में। अगर आप आप ये और आगे दिखा भी सकते हैं। हाँ जी जरूर। यही देख रहे हैं कि हमारे जो पूरी कंट्री में माशाल्लाह इतनी ज्यादा प्लेन है ये स्किल वाला। मौजूद है, उनके हाँ। काम को अगर देखें हाँ तो पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है मुख्तलिफ स्किल से, बिल्कुल। और इसको अगर मटेरियलाइज करते हुए खोलो ये, ठीक है। हाँ जी, टेबल आप मैट्स हैं, आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, फंक्शनल प्रोडक्ट ये सारे हैंडमेड हैं। सारे हैंडमेड हैं। वेरी नाइस। जैसे टेबल मैट्स हैं, इनसे रोमन ब्लाइंड्स वगैरह हमारी किसी भी प्रोडक्ट में हम लेके जा सकते अच्छा हैं। ठीक है, और फिर जो इसका जो प्रॉफिट आता है वो आप लोग डायरेक्टली उनको हेल्प आउट करते हैं? एग्जैक्टली। एक तो ये देखिए इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि हमारी अभी एक आउटलेट स्टार्ट हुई है लाहौर में, अच्छा जी। जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ ठीक है, एक तो ये वहाँ से जो भी ऑर्डर्स प्लेसमेंट होती है वो वापस आर्टिजन्स को जाती है, हाँ तो एक कंटिन्यूस उनका साइकिल चलना शुरू हो गया। पहले तो वो ये परेशान होते थे कि वो चीज़ बना के सेल कहाँ करें, बिल्कुल। अब वो आहन एक सोर्स मौजूद है जो उनकी प्रोडक्ट ले रहा है और हाँ। उनको ऑर्डर दे रहा है कि बिकॉज के आहन के तवसत से ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं चीज़ें, अच्छा, बाहर भी बाहर रही भी हैं। जा रही हैं। जैसे यूएसए, स्वीडन वगैरह हाँ। में काफ़ी अभी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। जो स्टॉल आपने पहना है ये हाँ, यूएसए ये में अजरक तो like बहुत किया ज़्यादा, जाता है। बिल्कुल। और वो बड़ी इंटरेस्टिंगली वेजिटेबल डाइज आपको पता है कि जी हाँ। नेचुरल डाइज, बिल्कुल। तो उस वजह से ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गई हैं और माशाल्लाह से लोगों का रिस्पांस भी है। और उस अच्छा, वजह बहुत से अच्छा। काफ़ी अच्छा, आप लोग टेक्सटाइल साइट पर भी हैं, आप लोग के ड्रेसेस वगैरह भी हैं आहन जी। के, तो वो किस तरह से आप लोगों को आया आइडिया कि ये भी इसको भी हमें स्टार्ट करना चाहिए? देखिए हर सेक्टर जो एनालाइज किया गया है कि पाकिस्तान में जो मेनली खासतौर पे औरतें हैं वो टेक्सटाइल से ही रिलेटेड हैं। मीन्स कि आप अगर रूरल एरिया में देखें तो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम आपको Embroidery का मिलेगा, जो बिल्कुल। आपको रली का काम मिलेगा, और मतलब रिलेटेड फील्ड टेक्सटाइल ही है जहाँ पे वो मौजूद होती हैं और वो औरतें इसमें काम कर सकती हैं। ठीक है। तो उन्हीं के स्किल्स को हमने बेस बनाते हुए फिर टेक्सटाइल सेक्टर में जो अप्रैल है उससे जो दूसरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन उसमें जा रहे हैं, अच्छा। पर्सेस हैं, क्लचेस हैं बिल्कुल। और मैं एक्सेसरीज देख रही थी बड़े खूबसूरत क्लासेस हैं आप लोगों के, बहुत हसीन, वो सिंधी पूरा काम हुआ हुआ है उसके ऊपर, शीशे लगे हुए है ना, देख सारी इन सब डिजाइन्स के। और टोटली हैंडमेड है, हाँ, मगर अगर आप उसका फैब्रिक देखेंगे वो भी हैंड वोवन है और उस पे एम्ब्रॉयडरी भी कंप्लीट हैंड एम्ब्रॉयडरी है। हाँ ठीक है। और काफी रीजनेबल भी है, अगर आप मार्केट से कंपैरेटिवली हमारी उनकी क्लचेस की प्राइस को कंपेयर करें तो पीपल फाइंड इट वेरी रीजनेबल। रीजनेबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं शकील साहब, आपकी एक सक्सेस स्टोरी सायमा काकर की भी है, तो ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने क्या किया था और उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है? देखिए ये शुरू में जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे ये वो लोग हैं जो हमारे साथ उस वक्त से शामिल हैं। अच्छा। सायमा काकड़ हैं, इसके अलावा सिंध में जादू हैं या यास्मीन हैं, या मतलब मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब से देख लें नईम जो कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल में भी वहाँ पे अभी उनका डिस्प्ले था। तो इस तरह से एक मुख्तलिफ एरियाज़ में केस स्टडीज़ हैं जो कि आर्टिजन्स हैं बेसिकली, लेकिन उन्होंने इस काम को एज एन एंटरप्रेन्योर के तौर पे शुरू कर चुके हैं और वो अब एक समझे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि शुरू में आर्टिजन थे अपने लिए काम करते थे, लेकिन अब दूसरों को वो रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों को वो बता रहे होंगे जाकर के, उनके साथ 100 लोग और शामिल हो गए हैं जिनको वो काम लेके देते हैं और वो काम करते हैं। बिल्कुल। इट्स लाइक एक चेन है जो चल रही है और हम इसी तरह देख रहे हैं कि इसी मॉडल के थ्रू अगर आप कंटिन्यूसली लोगों के साथ काम करें, और बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, 4-5 साल के अरसे में देखें कि माशाल्लाह इतना माशाल्लाह डेवलपमेंट हुई है और लोग इतने इंडिपेंडेंट हो गए, एम्पावर हो गए। आप देखें क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि हम आर्टिजन्स को कैपेसिटी बिल्डिंग तो करते ही हैं, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो डिज़ाइनर्स जाके उनके साथ काम करते हैं, लेकिन
साथ साथ हम उनको एक्सपोजर भी देते हैं थ्रू एग्जीबिशन। ठीक है, लास्ट ईयर ये हमारी सही बात है कि तो बहुत बड़ी बात, पाकिस्तान हाँ, में एक बहुत बड़ी एक्सपो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होता है बिल्कुल, जिसके एक स्टॉल की फीस जो है वो 50,000 रुपीज जी है, हाँ, लेकिन हमने उन आर्टिजन्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ओह और वेरी हमने गुड, उनको ट्रांसपोर्ट, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनको बुलाना रहना करना सारा सब हमने कुछ sponsor आपने, किया। हाँ ठीक और है, उनको एक्सपोजर दिया कि वो अपने interact फन